Good morning to all students. Once again, we are coming to introduce a new topic of class 12 business studies. You know very well in the last few videos we discussed the chapter number 12 consumer protection. In this chapter, firstly we discussed what is the meaning of consumer protection. Consumer protection is a very wide term. It includes the providing information to the consumer about their rights and responsibility and help in getting their grievances redressed. You know very well consumer is treated as the king of the market and producer produce goods as per their needs and wants. So that's why we can say that consumer protection is a very important for the every businessman, for the every market, because consumer is a person who buy any goods or avail any services for a consideration which has been paid or promised. The term includes any other users of such goods when such use is made with the approval of the buyer. In the last video we discussed the importance of consumer protection, and the importance of consumer protection classified into the two categories. The first one is a from consumer point of view, and number two from business point of view. If we are talking about the importance of consumer protection from consumer point of view, so it includes a various heading, like you know very well in your screen. The number one is consumer ignorance. With the help of consumer protection, we can easily remove the consumer ignorance. And number two, with the help of the consumer protection, we can easily form a organized consumer organization by which consumer can easily protect and promote their rights and responsibilities. Number third, widespread exploitation of consumer. You know very well there are various kind of things in which we can see that the consumer are widely exploited by dishonest behavior of producer and traders. For example, producer or marketer sell substandard or duplicate products which are not even helpful for the human consumption, or they may charge higher price for scarce goods. So with the help of consumer protection, we can easily remove the consumer ignorance, as well as we create a organized consumer association like a consumer organization, and as well as we remove or minimize widespread exploitation of the consumer. So you can see that consumer protection is absolutely necessary in order to get rid of such exploitation. So with the help of consumer protection, every consumer is free from the such kind of exploitation like ignorance, like create organized consumers, as well as minimize the widespread exploitation of the consumer. If you are talking about the consumer protection from the business point of view, so you can see that with the help of the consumer protection, businessman also takes a lots of advantages from the consumer protection, like number one, long-term interest of the business. With the help of consumer protection, every businessman on a long-term stability in the market, because you know very well consumer faith is an enterprise is a prime importance things. This can be achieved by enterprises by producing and offering goods of right quality at a reasonable price. And number second is importance of business uses society resources. You know very well every businessman uses society resources, so such resources is used for the benefit of the societies and consumer. So it is a very important responsibility of every businessman to use the society resources for the benefit of the society and the consumer. So the consumer protection is also very important for the businessman, because business use the society resources. And number three, you know very well, that is a social responsibility. Social responsibility is very important element, because you know very well business is run to pursue multiple objective. बिजनेस के कई ऑब्जेक्टिव होते हैं, एंड विद द एम ऑफ दिस ऑब्जेक्टिव कैन बी इंक्लूडेड
social objective with the economic objective. You know very well, economic objective includes the three things: profit, survival and growth. But when we are talking about the secondary objective of every business, so it is a social objective. Social objective includes the interest of the consumer, employees, supplies, societies and government. So we can say that consumer protection is a part of the social objective. So with the help of the consumer protection, every business can easily complete their social objective. And number 4 is a moral justification, you know very well as to focus on the government intervention. You know very well, there were various kind of government intervention who promote and protect the consumer interest, and consumer form a very important laws for the consumer protection, that is the Consumer Protection Act 1986. So all the topics which are discussed by me, it was already discussed in the last video, that is of importance of the consumer protection from the consumer point of view as well as from the business point of view. So now we will move to the next topic of this chapter, and it is a very important topic for you. So please note down all these topics and please make a notes of all these topics in your copy. So the next topic of today, that is a consumer rights according to the Consumer Protection Act 1986. You know very well, we can see that government formulate and passed a legal framework to control the malpractices of the seller. The government provides a legal framework which protect and promote the consumer interest, that is a Consumer Protection Act 1986. So आज का हमारा टॉपिक इज कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, राइट्स ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. So this is the topic. You can see that the topic is राइट्स ऑफ कंज्यूमर अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986. यानी गवर्नमेंट ने जो एक्ट बनाया है, दैट इज़ अ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. उस एक्ट के तहत हमारे कंज्यूमर्स को कुछ स्पेसिफिक राइट्स मिले हुए हैं, और वो राइट्स वो अपने गुड्स को बाई करते समय, यूज़ करते समय एंड आफ्टर सेल सर्विसेज के समय उन सारे राइट्स को यूज़ कर सकते हैं. सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर सिलेबस, दैट इज़ द राइट्स ऑफ कंज्यूमर अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट. So let us start the today's topic, that is the rights of consumers under Consumer Protection Act. So what is this heading? Consumer Protection Act के अंदर, according to the Consumer Protection Act 1986, it provides several rights to the consumer when they buy the product, when they use the product, and when they get the harm from this product. So such kind of rights can be exercised by the consumer under the Consumer Protection Act 1986. So what these are the rights? Let's we discuss it. Consumer has the right to buy or not to buy the product that is offered for sale. The first right you can see that कि कंज्यूमर के पास ये राइट है कि वो चाहे तो प्रोडक्ट को खरीद सकता है या तो उस खरीदने वाले प्रोडक्ट को ना खरीदे. ये उसके ऊपर डिपेंड करता है. ये तो आपको भी पता है, यू नो वेरी वेल, कि कंज्यूमर हैज़ राइट टू बाई और नॉट टू बाई द प्रोडक्ट इज़ ऑफर्ड फॉर द सेल. यानी मार्केट में ज़रूरी नहीं है कि जितनी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं कंज्यूमर उसको खरीदे. ये उसके ऊपर राइट है, ये उसके ऊपर ये उसका राइट है कि वो उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहता है कि नहीं खरीदना चाहता. टू एक्सपेक्ट द प्रोडक्ट टू बी सेफ, ये भी इंपॉर्टेंट लाइन है. उनके अंदर ये भावना होती है कंज्यूमर के अंदर कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि वो प्रोडक्ट उनके लिए सेफ हो. टू एक्सपेक्ट द प्रोडक्ट टू बी वॉट इज क्लेम टू बी, to be adequately informed about the more important aspect of the product. So under the Consumer Protection Act 1986, a consumer gets the following legal rights. So according to the Consumer Protection Act, a consumer gets the following legal rights. That is, the first legal right is right to safety. As you can see that on your screen, the first right is right to safety. What is the right to safety? The right to safety is important for safe and secure living. The right to safety means right to be protected against products, production process and services which are hazardous
टू हेल्थ और लाइफ। सो यू कैन सी डैट जो सबसे पहला राइट होता है वो होता है कंज्यूमर का राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी मीन्स कि कोई भी प्रोडक्ट अगर कोई भी कस्टमर यूज़ कर रहा है तो वो प्रोडक्ट उनके लिए सेफ़ हो और उनकी लाइफ के लिए सिक्योर हो। दूसरी बात ये है, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जिनको यूज़ करते समय, जिनसे सर्विस लेते समय वो प्रोडक्ट हमारी लाइफ के लिए, हेल्थ के लिए हानिकारक होते हैं, हार्मफुल होते हैं। That is, for example, certain goods like electrical goods and pressure cooker cause serious injury. If there is any manufacturing defect in them, there is also risk to life. So you can see that जो पहला राइट है वो मिला है कंज्यूमर को, दैट इज़ द राइट टू सेफ्टी। क्योंकि कुछ गुड्स ऐसे होते हैं जैसे यू कैन सी दैट इलेक्ट्रिकल गुड्स, प्रेशर कुकर्स, इनसे काफ़ी सीरियस इंजरी हो सकती है अगर इनको बनाते समय अगर हम केयरफुली नहीं देखते। सो इट इज़ देयर इज़ ऑल्सो रिस्क टू लाइफ। सो अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एज कंज्यूमर हैव द राइट टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट एनी सच डेंजर। तो कंज्यूमर को ये राइट है कि वो इन सारे डेंजर के अगेंस्ट क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है अगर उसको कोई हार्म पहुंचता है तो। लेकिन अब ये कहने की बात है कि सर सपोज़ कोई प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो गया और उससे ख़राबी आ गई और किसी कस्टमर की जान चली गई या उसका कोई भी फिज़िकल पार्ट्स जो है वो डैमेज हो गया। सो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या प्रिकॉशंस रखे हैं? इसके लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्पेसिफिक मार्क्स डिज़ाइन किए गए हैं। सो कंज्यूमर मस्ट प्रेफर टू परचेज इलेक्ट्रिकल गुड्स वाइल सीन इन द ISI मार्क। फूड आइटम्स के लिए यू नो वेरी वेल, फूड आइटम्स के लिए यहाँ पर एग मार्क का यूज़ किया जाता है। सो ये कहीं ना कहीं उस प्रोडक्ट को वेरीफाई करते हैं, इलेक्ट्रिकल गुड्स को वेरीफाई करते हैं। अगर उस पर ISI मार्क है सो इट वेरीफाई दैट दिस प्रोडक्ट इज़ सेफ़। एंड फूड आइटम्स पे अगर एग मार्क लगा है तो ये भी एक तरह से वो सर्टिफाई करते हैं कि ये प्रोडक्ट भी कंज्यूमेबल प्रोडक्ट्स है, इसको ईजिली हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं। सो बेसिकली राइट टू सेफ्टी, ये पहला राइट मिला हुआ है टू द कंज्यूमर कि कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करते समय अगर उसमें हेल्थ या लाइफ का डेंजर है तो प्रोड्यूसर एंड मार्केटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको एक प्रॉपर सेफ प्रोडक्शन प्रोसेस से बनाया जाए, ठीक। क्योंकि अगर इसमें कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट निकलती है तो उसका लॉस किसको बियर करना पड़ता है, कंज्यूमर को। सो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्पेसिफिक मार्क्स डिज़ाइन किए गए हैं जो उस गुड्स को प्रूफ करते हैं कि ये प्रोडक्ट्स यूज़ के लिए सेफ़ है कि नहीं है। जैसे यू नो वेरी वेल देयर आर वेरियस काइंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट इन अवर मार्केट। सो हाउ वी कैन चूज़ कि दिस प्रोडक्ट इज़ फ्री फ्रॉम डेंजर और दिस प्रोडक्ट इज़ व्हेन वी बाई सच प्रोडक्ट, सो हम डेंजर प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, कहीं हमें ये हार्म भी पहुंचा सकता है। सो वी कैन डिफ्रेंशिएट सच काइंड ऑफ प्रोडक्ट विद द मार्क्स। अगर हम इलेक्ट्रॉनिकल गुड्स को परचेस कर रहे हैं तो उस पर ISI मार्क होता है, और अगर हम फूड आइटम परचेस कर रहे हैं तो उसमें एग मार्क होता है। तो हम कह सकते हो ना, एज अ कंज्यूमर हम थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं कि ये प्रोडक्ट हमें ख़रीदना है, ये प्रोडक्ट हम खरीद सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम आपको कोई प्रोडक्ट दिखाते हैं, सपोज आई वॉन्ट टू सी वन प्रोडक्ट, दिस इज़ अ प्रोडक्ट सीन बाई यू, दैट इज़ it is a LED down light product. But इस प्रोडक्ट when you purchase such product तो firstly you see this product, किस प्रोडक्ट पे ISI मार्क गिवन है कि नहीं गिवन है। सो मैंने ये प्रोडक्ट का कवर रखा हुआ है, सो यू कैन सी दैट इस प्रोडक्ट पे ISI मार्क नहीं है। सो जब आप इस प्रोडक्ट को खरीदें, इट इज़ इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स और इस पर ISI मार्क नहीं है, यू नो वेरी वेल ISI मार्क कैसे दिखता है, यू नो वेरी वेल। सो अगर इस प्रोडक्ट पे ISI मार्क है सो हम इसको ख़रीदते समय सेफ्टी का अनुभव कर सकते हैं, सेफ्टी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बट अगर इस पे ISI मार्क नहीं है तो हम इस पे सेफ्टी नहीं कर सकते। अब मेरी चॉइस है, यहाँ पे गवर्नमेंट ने मेरे ऊपर छोड़ दिया है ISI मार्क वाला प्रोडक्ट लेना है कि विदाउट ISI मार्क वाला प्रोडक्ट लेना है। सो राइट टू सेफ्टी तो मिला है कि आपके ऊपर, आपको ये सेफ्टी है कि कोई भी गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहा है प्रोड्यूसर तो वो प्रॉपर प्रोडक्शन प्रोसेस को फॉलो करके प्रोडक्शन करे और गवर्नमेंट से उस पर मार्क्स स्टैब्लिश लाई करे, क्योंकि गवर्नमेंट ने कुछ स्टैंडर्डाइजेशन स्टैंडर्ड्स प्रोसेस डिज़ाइन किया हुआ है कि इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको ये स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। तो वो कहीं ना कहीं इस बात को प्रूव करता है कि उस गुड्स को यूज़ करने से हमें कुछ हार्म नहीं पहुँचेगा।
सो वी कैन से दैट कि ये सारे प्रोडक्ट्स पे अगर ISI मार्क हैं इलेक्ट्रिकल गुड्स पे, तो हम खरीदते वक्त सेफ्टी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। बट अगर उस पर ISI मार्क नहीं है तो कहीं ना कहीं हम डेंजर चीज़ें परचेस कर रहे हैं। एज सेम एज इन केस ऑफ द फूड आइटम, अगर हम फूड आइटम परचेस करते हैं तो एग मार्क अगर उस पर प्रिंटेड है, एग मार्क उस पर गिवन है, सो हम उस प्रोडक्ट को ईजिली कंज्यूम कर सकते हैं। ये हमारा राइट भी है और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यू नो वेरी वेल, बिकॉज राइट्स है, राइट टू सेफ्टी, कि कोई भी प्रोड्यूसर गुड्स प्रोड्यूस करेगा तो उस पर प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करके प्रोड्यूस करेगा। अगर उसमें कोई भी दिक्कत आती है या मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट होती है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? सेलर जिम्मेदार होगा, मैन्युफैक्चरर्स जिम्मेदार होंगे। इज दैट क्लियर? बट हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या निकल के आ रही है कि व्हेन वी परचेस सच काइंड ऑफ द प्रोडक्ट लाइक स्पेशली इन द इलेक्ट्रिकल गुड्स एंड द फूड आइटम, सो हम ये देखें कि उस प्रोडक्ट पे ISI मार्क गिवन है या नहीं गिवन है। सो लेट्स मी मूव टू द सेकेंड राइट, that is the right to be informed and right to representation. What is right to representation, right to be informed? Consumers should have the right to be informed about the quality, quantity, purity standard and price of the goods and services so as to make the right decision. यानी कि कोई भी गुड्स खरीदते वक्त कंज्यूमर के पास ये राइट होता है कि उसे उसकी क्वालिटी के बारे में, उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी के बारे में, उस प्रोडक्ट की स्टैंडर्ड्स के बारे में और उस गुड्स के प्राइस के बारे में राइट होना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। सो दैट्स वाई इसका नाम क्या है, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। यानी व्हेन एनी कंज्यूमर परचेज एनी प्रोडक्ट्स, सो ही हैव अ राइट टू गेट द इंफॉर्मेशन about the quality, quantity, standard and price of the such goods and services. That's why he can make a right decision. जैसे मेरे सामने दो ऑप्शन हैं, एक ये पेन मार्कर लेना है, एक ये मार्कर लेना है, तो वी हैव अ सफिशिएंट नॉलेज अबाउट दीज मार्केट। इस मार्केट की भी हम, इस मार्कर की भी हमें क्वालिटी, क्वांटिटी, प्योरिटी ऑफ स्टैंडर्ड प्राइस पता होनी चाहिए, इसके भी पता होनी चाहिए, ताकि हम इसको खरीदते वक्त डिसीज़न ले सके कि मेरे लिए कौन सा प्रोडक्ट सुटेबल पड़ेगा। सो ये कैसे होता है? देयरफॉर द मैन्युफैक्चरर मस्ट मेंशन कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट्स, इट्स इंटीग्रेंट्स, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर्स, प्राइस, प्रिकॉशन ऑफ यूज़, ETC ऑन द लेबल एंड पैकेज ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा हुआ है मार्केटिंग मिक्स में, दैट इज़ अ प्रोडक्ट मिक्स में लेबलिंग एंड पैकेजिंग। सो पैकेजिंग एंड लेबलिंग इज़ अ पार्ट ऑफ द राइट टू बी इंफॉर्मेशन, because according to the Consumer Protection Act, every consumer have a right to be informed. उनके पास ये राइट है कि हर कंपनी को अपने प्रोडक्ट के लेबल पे, पैकेजिंग पे एक लेबल लगाना होगा, उस लेबल पे उस प्रोडक्ट के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन देनी होगी कि उस प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, उसके इंटीग्रेंट्स, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, प्राइस एंड प्रिकॉशन ऑफ यूज़, कि उस प्रोडक्ट को यूज़ कर समय हमें क्या क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, स्पेशली फॉर द एक्सपायरी डेट ऑल्सो। सो यू कैन सी दैट कोई प्रोडक्ट अगर हम खरीदते हैं, सपोज ये मेरे पास समय प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नेम, प्रोडक्ट की सारी इन्फॉर्मेशन, प्रोडक्ट के फीचर्स, कैसे इसको यूज़ करना है, अगर कोई फीचर्स एंड डायमेंशन है तो वो, एंड वार्निंग इज ऑल्सो गिवन on the packaging of the product. So for example, you will find the information about the integrants used to produce the product, direction to use, producer address on the package and date of manufacturing and date of expiry, batch number, quantity and maximum retail price on the label of the product. So you can see that जब आप किसी प्रोडक्ट की पैकेजिंग को देखते हो तो you will get all the information related to the product, that is डायरेक्शन टू यूज़, उस प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है, प्रोड्यूसर के एड्रेस, प्रोड्यूस द प्रोडक्ट, डायरेक्शन टू यूज़, आप उस प्रोडक्ट को कैसे यूज़ करना है, प्रोड्यूसर का एड्रेस, पैकेज एंड डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, उस प्रोडक्ट की पैकेजिंग कब हुई है, किस डेट को उसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है, उस प्रोडक्ट की एक्सपायरी कब है, बैच नंबर, क्वांटिटी एंड एज वेल एज द MRP, you can see that. Okay, so such kind of things, such kind of information are part of the labeling after the packaging of the product, and it is mandatory to all the product, चाहे वो प्रोडक्ट लोकल हो चाहे वो ब्रांडेड है। आप यू कैन सी दैट कि जो ब्रांडेड हो चाहे लोकल प्रोडक्ट हो, सारे प्रोडक्ट में ये सारी इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, एंड इट इज़ अ कंपल्सरी ड्यू टू द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। सो यू कैन सी दैट
कंज्यूमर हैव अ टू बेसिक राइट. द फर्स्ट इज राइट टू सेफ्टी, कि मैन्युफैक्चरर जब भी कोई गुड्स प्रोड्यूस कर समय प्रॉपर प्रोडक्शन साइकिल को फॉलो करे, प्रॉपर स्टैंडर्ड्स को फॉलो करे, एंड स्टैंडर्ड को फॉलो करने के साथ साथ गवर्नमेंट्स के थ्रू दिए गए स्टैंडर्ड्स को फॉलो करने के साथ उस प्रोडक्ट पे स्पेसिफिक मार्क्स भी अवेलेबल कराए, लाइक यू नो वेरी वेल, लाइक इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स पे ISI मार्क, फूड प्रोडक्ट्स पे एग मार्क, एंड यू नो वेरी वेल गोल्ड ज्वेलरीज पे हॉल मार्क. सो ये सारी चीज़ें उस प्रोडक्ट की क्वालिटी को प्रूफ करता है, क्वालिटी को सर्टिफाई करता है. एंड द नंबर सेकेंड थिंग यू कैन सी दैट right to be informed. The second right is right to be informed. According to this right, every consumer have a right to get the information about the quality, quantity, standard and price of the goods and services, by which he can easily decide whether product is purchased or not. As well as you know very well, it is a part of the labeling. Every manufacturer, whether it is as branded or not, so it is their responsibilities, I mean producer की responsibilities है to after the packaging of the product to give the necessary information related to the product, that is the ingredients used for the production of the goods, date of manufacture, price of the goods, precaution of use, means how to use, what are the precaution before the using of the products, and as well as the maximum retail price of the product. So you can see that the first two right of the consumer given by our government, given by our constitution, and it is specific, it is these right given to the consumer by the specific act, that is the Consumer Protection Act 1986. So now we will move to the third right. The third right is right to choice and right to choose. You know very well, there are various types of product available in our market. If you are talking about the pens, so we have several brands of the pen. If we are talking, so we have 2 to 3 types of the pen. Suppose we have a blue pen of Flair Retometer, and we have a Win Guide pen. We have a 2 pen suppose, and when we go to the market and when we purchase such product, तो we have a right to choose and right to choice. यानी हमारे ऊपर ये है कि हम कौन सा पेन खरीदेंगे और कौन सा पेन नहीं खरीदेंगे. So it is a basic and very common right given by the Consumer Protection Act to the every consumer to right to choose. मतलब हमें क्या select करना है. You know very well, there is a lots of competition in our market. हमारे मार्केट में कई तरह के कॉम्पिटिशन्स हैं, और उस कॉम्पिटिशन में एक प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट को इन्फीरियर और अपने प्रोडक्ट को सुपीरियर प्रूफ करने में लगा होता है. सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एवरी प्रोडक्ट एंड फॉर द एवरी कंज्यूमर कि वो कंफ्यूज ना हो, एंड दे विल बाई द प्रोडक्ट इंडिपेंडेंटली. मीन्स they buy the product, means every consumer buy the product without any kind of pressure. यानी अगर हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हमारे पर कोई प्रेशर नहीं है. that is a right to choose. So let's discuss it. What is right to choose? The third right given by Consumer Protection Act 1986, that is right to choose. So you can see that a variety of products are available in the market at competitive price. The manufacturer or traders must give the consumer to chance to choose from alternative products available. Hence the consumer should always be given at a right to choice. So you can see that हमारे markets में variety of products available है, वो भी competitive price पे. किसी के ₹1 ज़्यादा है, किसी के ₹1 कम है, या किसी के price तो same है but किसी के weight ज़्यादा है, किसी की quality में differentiation है. सो यू नो वेरी वेल कि जिस तरह से मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रेडर को अपने अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए, उसको सेल करने के लिए फ्रीडम मिला है, उसी तरह से हर कंज्यूमर को ये भी राइट है कि वो अपने अकॉर्डिंग, अपनी कन्वीनियंट के अकॉर्डिंग किसी भी गुड्स को परचेस कर सकते हैं. सो यू कैन सी दैट यू हैव द राइट टू चूज़ योर स्पोर्ट्स शूज़
फ्रॉम द वैरायटी ऑफ ब्रांड्स अवेलेबल इन द मार्केट। यानी ये राइट है आपके पास कि आप स्पोर्ट शूज़ डिफरेंट ब्रांड्स के अकॉर्डिंग मार्केट से खरीद सकते हैं। जैसे यू नो वेरी वेल रिबॉक, एडिडास, टू वेरी बेसिक ब्रांड ऑफ द शूज़, बाटा शूज़ एंड वेरियस काइंड ऑफ लोकल ब्रांड्स। सो वी हैव अ राइट ना, कोई हमें फोर्स नहीं करता है कि आप एडिडास का ही परचेस करो, कोई हमें फोर्स नहीं करता है कि आप किसी स्पेसिफिक ब्रांड्स का ही परचेस करो। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है, एवरी कंज्यूमर हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं। शूज़ के मामले में हो, चाहे वो बेसिक नीड्स के बारे में हो। जैसे वी हैव अ लॉट्स ऑफ ब्रांड रिगार्डिंग द टूथपेस्ट, यू नो वेरी वेल, क्लोजअप, कोलगेट, पेप्सोडेंट, पतंजलि। So when we purchase the toothpaste for myself, so you know very well कि we have a right to choose। हमारे ऊपर ये बाउंडेशन नहीं है कि हमें यही प्रोडक्ट खरीदना है, यही पर्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदना है, हमें कोई भी प्रेशर नहीं होता। सो दिस इज़ द थर्ड राइट given by the Consumer Protection Act 1986, that is the right to choice, right to choose। Number 4 right, number 4 right is right to be heard। ये बहुत इंपॉर्टेंट राइट है। वॉट इज द राइट टू बी हियर्ड? द कंज्यूमर हैज़ अ राइट टू रजिस्टर हिज डिससेटिस्फैक्शन एंड गेट हिज कंप्लेंट हियर्ड एन एप्रोप्रिएट फोरम। राइट टू बी हियर्ड मीन्स अपनी बातें रखने का अधिकार। यू नो वेरी वेल, जब गुड्स प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस होने के बाद जब वो मार्केट में आता है तो उसकी कई तरह की एडवर्टाइजिंग की जाती है फ्रॉम द मार्केटर एंड फ्रॉम द सेलर। सो यू नो वेरी वेल, यानी गुड्स को खरीदने से पहले तक बोलने का अधिकार, सुनाने का अधिकार, अपनी बातों को एक्सप्रेस करने का राइट जो होता था वो सेलर एंड मार्केटर के ऊपर होता है। ओके, बट आफ्टर द सेलिंग ऑफ द प्रोडक्ट ये राइट किसके पास शिफ्ट हो जाता है? दैट इज अ कंज्यूमर। यानी गुड्स प्रोड्यूस किया, सपोज आई एम द प्रोड्यूसर, मैंने गुड्स प्रोड्यूस किया, फिर मैं चिल्ला रहा हूँ, मैंने एडवर्टाइजिंग की, मैं खूब अपनी बात लोगों को सुना रहा हूँ, मेरे पास राइट टू बी हियर्ड है। राइट टू बी हियर्ड मतलब मेरी बातों को लोग सुने, मेरे एडवर्टाइजमेंट को लोग देखें। उसके लिए मेरे वो बाउंडेशन नहीं है कि मेरा प्रोडक्ट, कुछ गुड्स ऐसे हैं जिनके एडवर्टाइजमेंट नहीं होते हैं, यू नो वेरी वेल, लाइक एल्कोहल प्रोडक्ट्स, लाइक एनी प्रोडक्ट विच आर इंजूरियस टू हेल्थ। सो सच काइंड ऑफ प्रोडक्ट को हम एडवर्टाइज नहीं करते, बट जो बेसिकली कॉमनली प्रोडक्ट है, सपोज आई एम द पेन मेकर, आई एम द प्रोड्यूसर ऑफ द पेन। सो जब मैं पेन बनाऊंगा तो उसका एडवर्टाइजमेंट दूंगा, न्यूज़पेपर में दे सकता हूँ, रेडियो में दे सकता हूँ, डोर टू डोर सेलिंग कर सकता हूँ, पर्सनल सेलिंग कर सकता हूँ। वी हैव अ राइट, यानी मैं अपनी बातें रखूँगा। लेकिन जब गुड्स सेल हो जाएगा तो उस गुड्स के सेल होने के बाद कंज्यूमर का जो फीडबैक है ये भी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो after the purchasing of the product, the consumer has a right to register his dissatisfaction and get his complaint heard in appropriate forum। यानी कंज्यूमर पास ये राइट है कि अगर उसे प्रोडक्ट को लेकर किसी प्रकार का कोई डिससेटिस्फैक्शन है या कोई कंप्लेन है तो उसे अप्रोप्रिएट फोरम में सुना जाना चाहिए। ऑल अदर राइट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द राइट टू बी हर्ड। यानी अगर हम राइट टू सेफ्टी करें, राइट टू चूज की बात करें, या राइट टू बी यू नो राइट टू सेफ्टी, राइट टू चूज, राइट टू बी हियर्ड। ओके, सो वी हैव अ बेसिक, अभी तक हम लोगों ने कितने राइट डिस्कस कर लिए हैं? वी डिस्कस द 3 इंपॉर्टेंट राइट, राइट टू सेफ्टी, राइट टू इन्फॉर्म एंड राइट टू चॉइस। तो अगर मान लीजिए राइट टू सेफ्टी है, हमें राइट टू चॉइस है, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, बट हमारी बात को सुनने के लिए मुझे राइट नहीं है, तो सेफ्टी, अगर राइट टू सेफ्टी मिली है और अगर हम सेफ नहीं है प्रोडक्ट से तो हमारी बात कौन सुनेगा अगर हमें कोई हार्म पहुंच जाता है? राइट टू चॉइस, राइट टू बी इन्फॉर्मेशन है, अगर मुझे कोई प्रोडक्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए और मैं अपनी इन्फॉर्मेशन किसी पर्टिकुलर फोरम से लेना चाहता हूँ या पर्टिकुलर मैन्युफैक्चरर से लेना चाहते हैं, बट वी डू नॉट हैव अ राइट टू बी हर्ड, बट मेरे पास राइट टू बी हर्ड नहीं है, तो क्या आप बता सकते हो कि सारे राइट्स हमारे पास हैं? नहीं है। सो सारे राइट्स तभी किसी कंज्यूमर को मिलते हैं जब उसके पास राइट टू बी हियर्ड हो, यानी उनकी बातों को लोग सुने। सो द ऑल द राइट्स आर मीनिंगलेस विदाउट द राइट टू बी हियर्ड। देयरफॉर ग्रीवेंसेस एंड क्लेम ऑफ द कंज्यूमर मस्ट बी हियर्ड एंड कंसीडर्ड। यानी कि कंज्यूमर को किसी प्रोडक्ट को लेके कोई डिससेटिस्फैक्शन है या कोई कंप्लेन है तो उसकी बातों को लोगों को सुनना चाहिए और कंसीडर करना चाहिए। मोस्ट ऑफ द रेप्यूटेड फर्म हैव सेट अप द
consumer service call to listen to the consumer complaint and take appropriate step to redressal their grievances. You know very well. Basic example मैं आपको देता हूँ, like a customer care, चाहे DTH सर्विस को लेकर देखो, चाहे मोबाइल फ़ोन की सर्विसेज को देख हो, टेलीकॉम सिम्स की सर्विसेज, चाहे एयरटेल, वोडाफोन, आर लॉट्स ऑफ द टेलीकम्युनिकेशन मार्केट. सो यू कैन सी दैट आप जब भी रिचार्ज कराते हो और इफ़ यू फील सच काइंड ऑफ डिफिकल्टीज लाइक कॉल नहीं जा रही है, लाइक इंटरनेट प्रॉब्लम, DTH के केस में अगर आपके पास DTH में कोई स्पेसिफिक चैनल अवेलेबल नहीं है, आपने रिचार्ज कराया बट आपके टीवी रन नहीं हो रहा है, सो यू विल कॉल द कंज्यूमर service. So it is an right given by the consumer protection given under the consumer protection in 1986 to the every consumer, that is the right to be heard. So you can see that, for example, most of the companies set up their customer care and grievances cell to face the problem related to address the consumer's problem. So in today we discussed 4 important rights given to the every consumer under the Consumer Protection Act 1986, and these are the number one is right to safety, number 2 right to inform, that is the right to representation, number 3 right to choice, and number 4 right to be heard. In the next video we will come to the remaining rights given to the consumer under the Consumer Protection Act 1986. So आज के लिए इतना ही. I hope today we cleared all the topics very easily. Apart from this, if you have any doubts or suggestion regarding this video, please ask me in the online classes as well as in the WhatsApp group. आज के लिए इतना ही. Thank you. Thanks a lot.